Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma, and आज इस video session में we have a great person with us. Today in this video, we'll be having a great interaction and आपके कुछ doubts before going to Chandigarh colleges, as we already know that admission process start हो चुका है. बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स है, क्वेरीज है कि कैसे उनकी कॉलेज लाइफ होगी, कैसे वो एंट्री करेंगे कॉलेज में, तो उनको क्या क्या नई चीजें देखनी पड़ेगी कॉलेज में. सो टुडे आई थॉट कि लेट्स डू अ वेरी इंटरैक्टिव एंड अ वेरी ग्रेट सेशन with one of my great teacher, I would say. इस सेशन का मेन मोटिव ये है कि एक हमें अवेयरनेस मिले, राइट, एंड स्टूडेंट्स शुड नो समथिंग बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉलेजेस. दिस इंटरव्यू सेशन will be in the special regard with history, ताकि आपको history subject के बारे में भी additional information मिले. Before starting with the session, I want to introduce today's speaker. I want to tell you people that today we have Dr. Snehalata ma'am with us. She is Bachelor's of Arts Honours from GCG 42 Chandigarh in History. Then Masters in History from Department of History, Punjab University, Chandigarh. Ma'am also did Bachelor's of Education from Kurukshetra University, Haryana. Ma'am has cleared UGC NET twice in the year 2011. With this, Ma'am has done PhD from the Department of History, Punjab University, Chandigarh itself. Talking about Ma'am's professional experience, Ma'am has worked in various reputed and great institutions situated in Chandigarh, like MCM Devi, Sector 36 Chandigarh, GCG 42, PU ISER, Punjab University Chandigarh, Department of History. Ma'am is currently working as Assistant Professor in the Department of History, Goswami Ganesh Datta, Sanatam Dharam College, Sector 32, Chandigarh. With this, I welcome Sneha ma'am on Passion Studies. Thank you, ma'am, for giving your valuable time for us and to the dear students. Thank you so much, Dikshant, for having me, and thank you so much for your kind introduction. It's my pleasure, ma'am. All right, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये बातचीत का सिलसिला. एंड यहाँ पर आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे मैम से, एंड आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस तो मुझे जो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड टेलीग्राम पे आते हैं, तो मैंने उसका एक मतलब आई वुड से आई हैव कंपाइल्ड ऑल द क्वेश्चंस, मैंने डायरी में जॉट डाउन कर लिए हैं, एंड आई विल बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम देम, some questions of mine, and I'll be asking from ma'am. Starting with the first question, ma'am, I want to ask you that when we come in college, so many students just want to opt history, but they are not aware about a subject. So ma'am, please tell us, is history a very tough subject in graduation or it's scoring? All right. See, history का ऐसा है, Dikshant, and for those students, देखिए, I cannot say it's a tough subject. It depends upon your choice, your interest. It is really very interesting. बस बात क्या है कि आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, ध्यान से इन द सेंस कि क्रोनोलॉजिकली जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इट बिकम्स ईजियर. लाइक जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं. अगर आप सपोजिटली इफ यू स्टार्ट फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. So it's better अगर आप ancient से prehistoric time, then ancient Indian history, उसके बाद medieval Indian history, modern Indian history, and then contemporary and at the same time world history, इसी chronological order में अगर आप पढ़ेंगे तो it will become easier. और अगर आप बात करें scoring की, ठीक है, देखिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए एंड फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो हिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं उन सबको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज गो फॉर हिस्ट्री ऑफ दिस सब्जेक्ट. ओके, एंड इट इज, अगर आप ढंग से लिखोगे आंसर्स, इफ यू विल गोइंग टू अटेम्प्ट द आंसर इन अ प्रॉपर मैनर,
then definitely you will going to score very good marks. And I will tell you, Dikshant is my student and he has scored 95 marks in history in BA first semester. So you have the live example in front of you, and I'm telling you, I have also scored very good marks during my graduation. बस तरीका आना चाहिए लिखने का, ठीक है? एंड अगर आप तरीके की बात करें तो उसके ऊपर आप वीडियोस देख सकते हैं. सो आई हैव अ चैनल, आप वहां देख सकते हैं. I've told कि किस तरीके से आपको वो आंसर्स जो है अटेम्प्ट करते हैं, then it will become scoring. Very truly said, ma'am, and बिल्कुल सही कहा आपने कि हिस्ट्री एज अ, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, आई वुड से. इसी के साथ मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जो हिस्ट्री है, what actually we study in history entire 3 years. Like they are not aware about the syllabus, I would say, or the course structure. They are confused whether we have to study only ancient or medieval or any specific history of an area. So ma'am, please just let us know about the specifically what is the syllabus in a very nutshell about the syllabus of Punjab University Chandigarh in affiliated colleges. All right, okay Dikshant. सी जब आप लोग स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो स्कूल्स में आप जो है थोड़ी लिमिटेड हिस्ट्री, इफ आई कैन पुट इट दिस वे, थोड़ा लिमिटेड पढ़ते हैं. आप जब हिस्ट्री का सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट तो उस चीज को आप बहुत डिटेल में करते हैं. सो देखिए, स्कूल में आप लोग चैप्टर्स वाइज पढ़ते थे, ठीक है? आपको हिस्ट्री का बुक होती थी, सिलेबस दिया जाता था चैप्टर्स वाइज. आप एंशियंट कभी पढ़ रहे हैं, कभी मिडीवल पढ़ रहे हैं, कभी मॉडर्न पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजिकली, वैसे तो कोशिश करती है एनसीईआरटी की क्रोनोलॉजिकली करे, बट फिर भी कई दफा वो बीच में कुछ ब्रेक हो जाता है. बट जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे, एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस, तब आपको क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी. यू विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विद बीए फर्स्ट सेमेस्टर. उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर पे आप मिडीवल पढ़ते हैं, देन आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं. एंड बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी है तो आपको पंजाब की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, ठीक है? इसके साथ साथ जो बच्चे लाइक आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यू कैन गो फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब और पंजाबी. तो उसमें क्या है, अगर आपने 10th तक पंजाबी करी है तो आप पंजाबी ऑप्ट करेंगे. इट इज अ कंपलसरी पेपर. अगर आपने पंजाबी नहीं पढ़ी है 10th तक तो आप HCP, दैट इज हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब. सो इन एडिशन टू एन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री है, उसके साथ आप HCP भी पढ़ते हैं यहाँ पे, विच इज अ कंपलसरी पेपर, जिसमें भी आप पंजाब का इतिहास जो है वो पढ़ेंगे. तो ये कुछ सिलेबस है. एंड आप देखोगे जो आपका सिलेबस है, इट इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, ठीक है? तो जैसे इफ यू आर, लेट्स टेक BA फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसमें आपका यूनिट वाइज सिलेबस डिवाइडेड होगा, जिसमें यूनिट 1 में यू विल गोइंग टू गेट 3 मेन टॉपिक्स, जिसको आप आगे सब टॉपिक्स पे डिवाइडेड होगा. इसी तरीके से सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में आपको मैप भी मिलता है. सो यू विल गोइंग टू गेट 2 मेन टॉपिक्स, जिसके आगे फर्दर सब टॉपिक्स होंगे. एंड देन उसके बाद आपको मैप होगा, जो आपको लोकेशन आपको मार्क करनी आनी चाहिए मैप में. वो एग्जाम में इट्स अ कंपलसरी पेपर, इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट आता ही आता है. एंड इसके साथ यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट प्लेस, कि जैसे हस्तिनापुर है तो हस्तिनापुर का पूरा आपने मार्क तो कर दिया मैप में, उसके साथ आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी जो कि 2 मार्क्स की होती है. तो इस तरीके से आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं बीए में. और आप देखेंगे पूरा सिलेबस, लाइक ओवरऑल आई कैन से कि पूरी हिस्ट्री इसमें कवर की जाती है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हिस्ट्री अगर आप एज अ प्रोफेशन इन फ्यूचर लेने वाले हैं, तो आई एम टेलिंग यू, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो पूरा अच्छे से कवर करता है. एंड बहुत आराम से आपका वो पेपर के लिए तैयारी हो सकती है. सो आई विल से, अगर आप ऐसे कुछ पेपर मतलब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हिस्ट्री को चूज करिए इन ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन. ऑल राइट, थैंक यू मैम. बिल्कुल मैम ने सही कहा कि आप जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे हिस्ट्री में या फिर पर्टिकुलर हम एक पेपर पढ़ेंगे, तो ग्रेजुएशन में यू गेट chance to study each and every sphere of history, as ma'am told over here, starting from ancient to the modern and contemporary. मैम इसी के साथ मेरा यहाँ पर ये सवाल रहेगा नेक्स्ट कि कॉम्बिनेशंस. मैनी स्टूडेंट्स फेस अ बिग dilemma. They are not very clear कि whether we should go for history or not. And in journal also,
कुछ स्टूडेंट्स मैम ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि उनको बाद में लाइक पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है। कुछ कॉलेजेस में कॉम्बिनेशन ही नहीं होते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि अगर मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए तो इसके साथ हिस्ट्री नहीं मिलेगा, तो मैम कॉम्बिनेशन में मैं देखूं लाइक फॉर स्पेसिफिकली इन पीयू कॉलेजेस इट्स अ वेरी लाइक इम्बैलेंस ऑफ थिंग। लाइक कॉम्बिनेशन चूज करना एक बहुत ही क्रूशियल वर्क रहता है स्टूडेंट्स के लिए। सो मैम यहाँ पर आपका क्या मतलब एक सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, एंड कॉम्बिनेशन चूज करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? तो मैम प्लीज लेट अस नो अबाउट दिस थिंग। All right. So combination is very important. I'm telling you people, क्योंकि आप बीए करने वाले हैं और आपका फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा. Whether you want to pursue these subjects in future, आप मास्टर्स इसमें करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है, क्योंकि आप पूरे 3 साल उसके साथ बिताने वाले हैं. ठीक है, वैसे सेमेस्टर सिस्टम है हमारा, तो 3 इयर्स को अगर आप देखें तो फिर 6 सेमेस्टर्स में वो डिवाइड हो जाएगा. सो आपने ये इतना लंबा टाइम इस पेपर्स के साथ आपने काटना है, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग. ऑब्वियसली आप उस पेपर में डेफिनेटली इंटरेस्टेड होने चाहिए हो, एंड इसके साथ साथ आपने उसका फ्यूचर स्कोप भी देखना है कि आप क्या परस्यू करने वाले हो आगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी वजह से आप प्लीज अपने कॉम्बिनेशन ढंग से चूज करिए. अब इसमें एक और चीज, ठीक है, अगर आपने मन बना लिया है कि आपने ये पेपर्स लेने हैं और सपोज वो किसी कॉलेज में अगर वो पेपर्स नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू कि आपने देखना है कि पहले तो आपके कॉम्बिनेशन कौन कौन से कॉलेजेस में है. बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि कॉलेज पे मत जाइए, जहां पे आपके कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं प्लीज वही करिए. सो इसमें मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी. जब मुझे सेलेक्ट करने थे कॉम्बिनेशन, आई वांटेड टू हैव फंक्शनल इंग्लिश. ठीक है, वो मेरी प्रायोरिटी थी. आई ऑल्सो वांटेड टू हैव हिस्ट्री. तो आप देखेंगे मुझे ये कॉम्बिनेशन जो फंक्शनल इंग्लिश और हिस्ट्री साथ में हो, वो ना, मुझे जीसीजी 11 में मैं एडमिशन लेना चाहती थी, बट वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं था. MCM में this combination was there, and in GCG 42 this combination was there. So MCM I thought कि ठीक है अच्छा कॉलेज है, but I thought कि गवर्नमेंट कॉलेज is also good. ठीक है, क्योंकि वहां पे भी अच्छे प्रोफेसर होते हैं. सो आई प्रेफर्ड अ गवर्नमेंट कॉलेज. सो आई टुक एडमिशन इन GCG 42, और वहां पे आई स्टडीड फंक्शनल इंग्लिश, इलेक्टिव इंग्लिश एंड हिस्ट्री. तो मैं ये बता दूं, ये सिर्फ 2 ही, अगर आप ये सेम कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, फंक्शनल इंग्लिश, इलेक्टिव इंग्लिश एंड हिस्ट्री, तो वो सिर्फ आपको MCM DAV में और इसके साथ GCG 42 में ही मिलेगा, और कहीं आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. तो और क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स भी किया है, तो ये तो मेरा एग्जाम्पल हो गया. एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्लीज मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जब भी कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें एक लैंग्वेज जरूर रखिए. या तो आप हिंदी ले सकते हैं, या इंग्लिश ले सकते हैं, या आप संस्कृत ले सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो आगे चलकर आपको काफी हेल्प करेगी. ठीक है, एंड फंक्शनल इंग्लिश के बारे में बताऊं, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट. आई एम टेलिंग यू पीपल, काफी लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती है. It is let me just tell you what is functional English. It is a basic course of mass communication. तो जो लोग अगर mass communication आगे pursue करना चाहते हैं, तो I will say कि आप please functional English opt करिए. And it is a vocational subject also. तो vocational subject मतलब जहां पे आपको फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट मिल जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट सेल में काफी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, लोग आते हैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने, और अगर आप का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब मिल जाती है. सो आई आल्सो गॉट सिलेक्टेड फॉर विप्रो, IBM दक्ष एंड वन मोर डेल. तो मेरा भी प्लेसमेंट हुआ था, बट आई प्रेफर्ड टू परस्यू माय हायर स्टडीज. तो इसी वजह से आई ड्रॉप द ऑप्शन ऑफ जॉब एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय MA. सो ये कॉम्बिनेशन है, तो आप, मैं बोलूंगी बहुत केयरफुली चूज करिए कॉम्बिनेशन. आप आगे क्या करना चाहते हैं वो सारी चीजें ध्यान में रख के आप ये चूज करिए. सो मैम ने बहुत ही अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन की, एंड जो मैम ने यहाँ पर आई थिंक हमें चीजें बताई है, हमें बहुत ही इसके ऊपर अमल करना चाहिए. ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स विल बी एंटरिंग इन द कॉलेज लाइफ, एंड जिन्होंने अभी तक कॉम्बिनेशंस नहीं चूज किए हैं, जो एडमिशंस ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि अपना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से चूज करिए. एज मैम टोल्ड कि वोकेशनल सब्जेक्ट यू मस्ट चूज. एंड विद दिस मैम ने एक और चीज हमें यहाँ पर बताई, दैट इज लैंग्वेज. एज वी ऑल नो दैट इन UPSC
compulsory. We have to choose one language, and with that English is very very compulsory. Many students face a very big problem. उन्हें English नहीं आती है. क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम या तो 12th में छोड़ देते हैं English, या फिर हिंदी जो लैंग्वेज होती है हमारी वो हम 10th में ही लीव कर देते हैं. अगर हम ग्रेजुएशन में एक लैंग्वेज रखेंगे, as ma'am told, so it will also be very very like important and very good for us to score high in all the competitive exams, क्योंकि हर एक competitive exam में हम देखते हैं लैंग्वेज आती है, एंड अगर ग्रेजुएशन में हमारे पास एक लैंग्वेज हो, so it can be a very good factor for being selected in all the competitive exams. इसी के साथ मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये होगा यहाँ पर कि जब मैम हम देखते हैं कि कॉलेजेस की बात करें, there are so many colleges under Punjab University Chandigarh, as you also framed in which college you studied. So यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा confusion और dilemma रहता है students में कि whether I should go for a private college or a government college or PU campus or regional centers or the interior colleges of Punjab, like not in Chandigarh, because there are approximately 180 affiliated colleges under Punjab University. So ma'am यहाँ पर एक choice कैसे की जाए, ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो, मतलब किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए एक स्टूडेंट को बिफोर एंटरिंग द कॉलेज? बेसिकली मैम लाइक चंडीगढ़ में ही पढ़ना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा. एक्चुअल में अच्छे कॉलेज कौन से हैं मैम? सो प्लीज स्पेसिफाई अबाउट दिस टू अस. ऑलराइट, देखिए कॉलेजेस सारे अच्छे हैं, ठीक है. चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो कॉलेजेस सारे बहुत अच्छे हैं. मैं नहीं कहूंगी कि ये एमसीएम अच्छा है या डीएवी अच्छा है या गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे. एवरी कॉलेज, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, बट आपको ये देखना है, देखिए 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोकेशन, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि घर के पास हो कॉलेज, या आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, बाहर रह के एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है, आप कम्यूट कैसे करेंगे. तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड आई एम टेलिंग यू, चंडीगढ़ तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली सिटी है और बहुत ही सेफ है. तो मैं पेरेंट्स को भी ये बता दूं, अगर वो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिकॉज मैं भी हॉस्टल में रही हूँ और आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, आप बहुत चीजें सीखते हैं. तो उस केस में चंडीगढ़ बहुत ही सेफ है. तो अगर आप आके यहाँ पे भी रहना चाहें तो बहुत अच्छा है, ठीक है. दूसरा होता है फाइनेंशियली आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखिए, आप कितना, देखिए सेम कोर्सेज आप देखेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में भी दिए जाते हैं, सेम कोर्सेज आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी दिए जाते हैं. तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, बिकॉज मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी, तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, सारी एमिनिटीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है. सो अगर आप, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आप किस में जाना चाहते हैं. हर एक कॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो कंपैरेटिवली आपकी फीस जो है वो थोड़ी कम होगी. एंड इफ यू हैव सम रिजर्वेशन और कोटा तो वो ऑटोमेटिकली और कम हो जाती है. तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको जो है प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलते हैं. तो ये चीजें हो गई. तो आई थिंक मेन तो यही 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो जिसके ऊपर आप देखेंगे, डिपेंड करता है. और आपके पेरेंट्स अग्री कर जाए हॉस्टल में रहना तो आप जा सकते हैं, ठीक है. तो बाकी मैं चंडीगढ़ को अगर कंपेयर करूं और एरियाज से, तो चंडीगढ़ के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है. स्टिल आई विल नॉट से कि वो बाकी के कॉलेजेस खराब है, इट्स जस्ट दैट क्वालिटी डिफर कर जाती है, ठीक है. अगर हम फैकल्टी की क्वालिटी की बात करें या स्टूडेंट की क्वालिटी की बात करें तो वो एरिया वाइज डिफर करता ही करता है. वो आप कहीं पे भी चले जाइए, आप दिल्ली में चले जाएंगे वहां पे अलग होगा, आप किसी इंटीरियर एरिया में, किसी विलेज में चले जाएंगे तो वहां पे वो डिफरेंस आता ही आता है. तो अगर मैं आपको बस ये कहना चाहूंगी कि चंडीगढ़ के लिए आप बेफिक्र रहिए, चंडीगढ़ के सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं. हाँ, ये क्वालिटी डिफर कर सकती है इंटीरियर्स में जाकर, बट ऐसा नहीं है कि खराब ही होंगे, ऐसा नहीं होता. वो इट डिपेंड्स, हो सकता है कि कई फैकल्टी यहाँ पे इतनी अच्छी ना हो, कि कई स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं अच्छे हो, वो डिपेंड करता है. बट बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम हियर, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, सो मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, सो सबका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है. तो आई विल से कि आप बेफिक्र होके चंडीगढ़ के किसी भी कॉलेजेस में अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से एडमिशन ले लीजिए. मैम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो ये रहेगा कि स्टूडेंट्स को बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, लाइक दे आर नॉट वेरी नोन टू दिस सिस्टम.
talking about students when they come from school, so that's a very like I can say a very basic system, class 11th 12th, so they are very well aware. बट मैम जब हम कॉलेज में आते हैं तो एक सेमेस्टर सिस्टम होता है, उसके अंदर काफी सारे हमारे टेस्ट होते हैं, लाइक एमएसटीज होते हैं, उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। तो मैम ये मतलब इसका कैसा सिस्टम होता है, फिर रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, कितने टाइम में आते हैं? सो मैम प्लीज गाइड अस अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आई हैव सीन कि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली पहले तो एनुअल सिस्टम ही था, अभी कुछ ही साल हुए हैं कि ये सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट हुआ है। तो देखिए सेमेस्टर होता है 6 मंथ, ठीक है। पहले एनुअल सिस्टम में आपके 12 महीने काउंट होते हैं, 12 मंथ्स आपकी क्लासेस लगती थी, सेमेस्टर उसका हाफ हो जाता है। एंड सेमेस्टर सिस्टम में जैसे एनुअल सिस्टम पूरा होता था, अकॉर्डिंगली सेमेस्टर चलता है। तो मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीए फर्स्ट ईयर लेते हैं, तो बीए फर्स्ट ईयर जो है वो 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड होगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर देन बीए सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा, आपका प्रॉपर सिलेबस होगा। लेट्स टेक हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, तो हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो यूनिट 1 यूनिट 2 पूरा ही आपकी एक बुक होगी। सिमिलरली जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स है सबकी एक बुक होगी, ठीक है। तो वो पूरा आप 6 महीने वही सिलेबस कवर करेंगे। उसके मिड में यू विल गोइंग टू हैव मिड टर्म एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। तो पूरा सेमेस्टर एंड होता है फाइनल एग्जाम के साथ, ठीक है। आप फाइनल एग्जाम देंगे और जो भी आपने पढ़ा है वो सब आपसे पूछा जाएगा, एंड उसके बाद आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन यू विल हैव द सेकंड सेमेस्टर, उसमें फिर आपका नया सिलेबस होगा, न्यू बुक लगेगी, ठीक है। उसके बाद फिर मिड टर्म एग्जाम होंगे एंड देन आपके फाइनल एग्जाम होंगे। और जो फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट है, ये काफी बच्चे पैनिक करते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। उसमें टाइम लगता है बिकॉज सेमेस्टर सिस्टम है, तो यूनिवर्सिटी के लिए सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से आप देखेंगे कि जब आपके सेकंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम शुरू होंगे तो उस दौरान आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। तो यूजुअली यही प्रोसेस है, हो सकता है उससे जल्दी आ जाए, बट मोस्टली यही होता है कि जब आपके सेकंड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम हो रहा है तब आपके रिजल्ट आते हैं। फिर होता है थर्ड सेमेस्टर, फिर आप नए दौर से आप शुरू करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ फिफ्थ आपका होगा थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस तरीके से 6 सेमेस्टर्स में आपका पूरा का पूरा 3 इयर्स डिवाइडेड है। तो एनुअल सिस्टम पहले होता था, ठीक है, बट अब थर्ड जब सेमेस्टर सिस्टम आ जाता है, तो मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा आपके लिए हैक्टिक हो जाता है। हैक्टिक एज इन आपको ब्रेक नहीं मिलती है, आप आए, मिड टर्म हुए, फाइनल हुए, मिड टर्म हुए, फाइनल हुए, बहुत हेक्टिक जाता है। बट इसमें बेनिफिट एक चीज है कि एनुअल सिस्टम में सपोजिटली आप एक ही बुक पढ़ते हैं, यहाँ पे आप 2 पढ़ रहे हैं, तो आपको नॉलेज जो है वो डबल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एनुअल सिस्टम में अपनी पढ़ाई करी थी, तो उसमें क्या होता था, हमारा हम एक बुक पढ़ रहे हैं, सपोज हमने एंशिएंट ही पढ़ी, बट यहाँ पे आप 2 सेमेस्टर में एंशिएंट मिडिवल दोनों हिस्ट्री कवर कर ले रहे हो। सो उस जगह पे आपका वो प्लस पॉइंट है। सो दिस इज दी होल सेमेस्टर, एंड ये डिफरेंस है मेन सेमेस्टर और एनुअल सिस्टम में। एनुअल में क्या है कि आपका एक ही बुक पढ़ोगे, एग्जाम होगा, बीच में 2 मिड टर्म्स होते हैं, बट सेमेस्टर में वो पूरा एक सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाए। आई होप मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। ऑल राइट मैम। मैम इसी के साथ में एक और चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगा, ऑनर्स का मैम क्या रहता है सिस्टम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में? एज मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द ऑनर्स प्रोग्राम कि कैसे में मिलता है, एंड डू वी गेट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर? तो मैम इसका हमें प्लीज स्पेसिफाई कर दीजिए। ऑलराइट, देखिए ऑनर्स जो है, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप सबको कि ऑनर्स प्लीज ऑप्ट करिए। व्हाई? बिकॉज यू विल गोइंग टू गेट दिस बेनिफिट इन फ्यूचर। अगर आप किसी जॉब के लिए बाद में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनर्स के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ और स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरल बीए कर रहे हैं, बट आप उसके साथ ऑनर्स भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसी वजह से सबको बोलूंगी कि गो फॉर ऑनर्स। और आप देखिए कि आपका कौन सा इंटरेस्ट एरिया है, कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, वो चूज करिए आप, ठीक है। आप हिस्ट्री कर सकते हैं, आप सोशियोलॉजी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, व्हाटएवर, जो भी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और आपको लगता है कि ये जो पेपर है ये आगे चलकर मुझे ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। दोनों फैक्टर्स है, इंटरेस्ट भी और बेनिफिट करेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आप ऑनर्स चूज कर सकते हैं। अब ऑनर्स आपको किस समय मिलती है? फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर मींस दोनों मिला के फर्स्ट ईयर में आपको नहीं मिलती ऑनर्स, ठीक है। सेकंड ईयर में जाकर आप ऑनर्स ले सकते हो, इट मींस थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में जाके आप ऑनर्स ऑप्ट कर सकते हो।
अब उसका बेसिस क्या होगा, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग ऑनर्स। तो उसके बेसिस पे कई ऐसे, बिकॉज देखिए साइकोलॉजी और इंग्लिश कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ऑप्ट करना चाहते हैं, बट उनकी लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम 100 स्टूडेंट्स को ही ऑनर्स दे देंगे, उसके लिए लिमिटेड क्राइटेरिया होता है, 30-50 स्टूडेंट्स, वो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज वो कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका अगर कुछ जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट्स है, फिर उनके लिए क्या होगा, आपका एंट्रेंस होगा, लाइक यू हैव टू गिव अ एग्जाम फॉर ऑनर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज, जरूरी नहीं है कि होना ही होना है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। या तो वो मेरिट बेसिस पे चूज करेंगे आपको, या फिर आपको एग्जाम के थ्रू करेंगे। उसके लिए क्या होता है, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, सो यू हैव टू फिल अप अ फॉर्म, ठीक है। एडमिशन जब आपका थर्ड सेमेस्टर का हो रहा होता है, तो उस समय आपको फॉर्म भरना पड़ता है ऑनर्स का, तभी आपको ऑनर्स मिलेगी। तो ये प्लीज सब याद रखिए कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, अपना प्रेफरेंस आप बता दीजिए, आप कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से या तो मेरिट बेसिस पे या फिर आप एग्जाम देके, ये दोनों क्राइटेरिया होते हैं, इसके थ्रू आपको ऑनर्स दी जाती है। और थर्ड सेमेस्टर में आपको ये ऑनर्स मिलेगी, तो आप प्लीज वाइजली चूज करिए, क्योंकि ये ऑनर्स के आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो ध्यान से हिस्ट्री का मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, बिकॉज आई हैव टॉट ऑनर्स इन माय कॉलेज। तो मैं बता दूं, एंशिएंट में आपको और डिटेल में, मिडीवल मॉडर्न में आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलता है। तो ऑनर्स में यही डिफरेंस है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स तो सिर्फ वो जो लिमिटेड सिलेबस है वो पढ़ेंगे, इसमें आप और डिटेल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एंशिएंट में आप सिर्फ जो सोसाइटी थी, किस तरीके के कल्चरल ट्रेंड्स थे, वो सब पढ़ते हैं। फिर आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के ऑनर्स में आप पढ़ते हैं मिडीवल के सोशल कल्चरल ट्रेंड्स क्या थे। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, सो गो फॉर ऑनर्स। Thank you so much, ma'am, for guiding the students, letting us know about this honors program. Ma'am, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स का इस टाइम में एक और ये है कि आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हैज कम ऑन डिजिटलाइजेशन. वी आर कनेक्टेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. अभी मैम देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड we are not able to go to the colleges and online teaching is being done. तो मैम पहले एक different setup था classes का. The classroom teaching used to be there. Students used to come. They used to get the lessons. एक exposure मिलता था, एक interaction था face to face, and we used to do many things. And but मैम जब से ये I can say online classes शुरू हुई है, so there has been a change. चाहे वो मैम पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. सो मैम प्लीज लेट अस नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टीचिंग मेथड्स, कि पहले कैसा था मैम एक्सपीरियंस और अब कैसा है, एंड हमें दोनों से क्या सीखने को मिला है, एंड मैम जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आएंगे मैम उनके लिए क्या नई चीजें रहेगी कॉलेज की इस ऑनलाइन टीचिंग में, एंड द पेपर्स विच वी राइट ऑनलाइन एंड मेनी थिंग्स अबाउट दिस. ओके, सो देखिए, पहली बार हमने ऑनलाइन क्लासेस लास्ट ईयर शुरू करी है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. वैसे तो आई होप एंड प्रे कि ये जो दौर है ये बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, हम सब ठीक हो जाए और वापस से फिजिकल फॉर्म में आए. बट यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, देखिए आप ऑनलाइन को इस तरीके से मत समझिए कि ये एक मतलब इट इज नॉट अ गुड मेथड, ठीक है. ऑनलाइन के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे फिजिकल क्लासेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सिमिलरली ऑनलाइन के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. और मैं बता दूं कि काफी प्रोज हैं, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है. और आप आई थिंक आप कन्विंस हो जाएंगे. बट स्टिल ओवरऑल आई विल से कि दोनों वे में होना, इट शुड बी ब्लेंडेड, कि ऑनलाइन भी हो कुछ टाइम के लिए, ऑफलाइन भी, वो मेरी प्रेफरेंस है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों टाइप से होनी चाहिए. बट अब डिफरेंस के बारे में बात करते हैं. तो देखिए, फिजिकल क्लासरूम में एक तो बेनिफिट ये होता है कि आप अपने टीचर को मिल सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, एंड जो बात मिल के होती है ना, जो फील, जो हम कहते हैं कि जो फील मिल के आता है, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस इंटरव्यू टुडे, बट वही है कि जो पास में बैठ के जो फील आता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन में वो मिस कर देते हैं, काफी चीजें मिस कर देते हैं, बिकॉज यू डोंट नो अ पर्सन. पहली बात तो बिकॉज क्लासेस में क्या होता है, बच्चे ऑनलाइन में अपना वीडियो ही ऑन नहीं करते हैं, कई बच्चे तो अपना ऑडियो ही ऑन नहीं करते, उससे आपको पता ही नहीं आपका स्टूडेंट कौन है. एंड इन सम केसेस टीचर्स भी कई दफा ऑन नहीं करते हैं, तो आपको पता ही नहीं आपका टीचर कौन है, आपको पता ही नहीं है स्टूडेंट कौन है. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है. फिजिकल क्लासरूम में यू कैन सी द फेसेस,
और उससे ये भी पता लगता है कि वेदर द स्टूडेंट इज अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट और नॉट। सपोज मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, आपको फेस के एक्सप्रेशन से आधी से ज्यादा चीजें पता लग जाती है कि बच्चों को समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग है या नहीं। तो वो चीजें मुझे थोड़ा ऑनलाइन में दिक्कत होती है। तो सिर्फ वही स्टूडेंट सुन सकते हैं जो इंटरेस्टेड है, बाकी तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, वो साइड में फोन रख के चले जाते हैं। सो दे आर लीस्ट बॉदर्ड। वो चीज आप क्लासरूम में नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। तो फिजिकल क्लासरूम के अपने अलग बेनिफिट्स हैं। आप टीचर को आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन में वो इंटरेक्शन थोड़ा मिसिंग हो जाता है। बट अगर हम बीए की बात करें, तो बीए में क्या होता है कि जब फिजिकल क्लासरूम होती है तो लेक्चर मेथड ही मेनली सारे टीचर्स फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या है, टीचर इज कमिंग, ओपन कर रहे हैं बुक, वो पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो आपका जो ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है वो यूज कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आप, बट ऑनलाइन में क्या बेनिफिट हो रहा है कि यू कैन शेयर द स्क्रीन विद द स्टूडेंट, सो यू कैन शेयर द पीपीटी, यू कैन शेयर द वीडियोस, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है, एक बच्चों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग पीपीटीज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमें फिजिकल क्लासरूम में एज सच नहीं देखने को मिलता है। और दूसरी चीज ऑनलाइन का बेनिफिट ये है कि आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो आपको एक तो कम्यूट करना जो है, वो जो आपका टाइम है, जो मनी है, वो बच रहा है आपका। आपके घर बैठ के कभी भी बैठ के पढ़ सकते हैं। फिजिकल में क्या होता है, यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम, ठीक है। आप, आई यूज टू ट्रैवल, मैं बता दूं अपने बारे में, मैं कालका से डेली चंडीगढ़ अप डाउन करती थी। तो मेरे 3 4 5 घंटे मैक्सिमम मेरे चले जाते थे ट्रैवल करने में। और प्लस मनी भी जा रहा है आपका, आप कम्यूट कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगेंगे। तो वो चीज क्या है, अब आप अपने घर पे रिलैक्स होके अपने कंफर्टेबल क्लोथ में यू कैन अटेंड द क्लासेस। तो एक तो ये चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है वो ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो क्या है कि बच्चे कई दफा टीचर्स के एंड से, स्टूडेंट्स के एंड से वो पहुंच ही नहीं पाती। कई बार आप बात कर रहे हैं, बीच में से 4 वर्ड्स चले गए, वो म्यूट हो गया बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि सब पढ़ सके, ठीक है। तो वही है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों में, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑनलाइन अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑफलाइन अच्छा है, दोनों के अपने बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है। तो आई विल से कि दोनों का अगर ब्लेंडेड कुछ कर सके, आई विल थिंक, मतलब अगर कुछ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इफ दे कैन डू एनीथिंग कि कुछ ऐसा ब्लेंडेड हो, विच ब्लेंडेड से मेरा मतलब है कि जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, जहां पे अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी देख सके टीचर्स को, प्लस जो आ सकते हैं वो फिजिकली, कुछ ऐसा ब्लेंडेड, नॉट लाइक कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेजेस में क्या होता है, हम कंप्यूटर स्क्रीन रखते हैं साथ में, और कई दफा बच्चे भी आ जाते हैं, तो क्या होता है, ऐसा समझ नहीं आता आप स्क्रीन को देखो या स्टूडेंट्स को देखो। सो फॉर दैट यू हैव टू हैव अ स्मार्ट क्लासरूम, जिससे कि अगर टीचर खुल के पढ़ाए और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहता है वो भी कर सके। सो इट डिपेंड्स पॉलिसी मेकर्स पे, डिपेंड्स अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज, वो कितना स्पेंड करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। तो दोनों के आई विल से अपने बेनिफिट्स भी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। तो मुझे तो दोनों में मजा आया, मुझे फिजिकल क्लासरूम में भी पढ़ाने का अलग एक्सपीरियंस था और ऑनलाइन का भी बहुत अच्छा। ऑनलाइन में वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, यू हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद योर स्टूडेंट्स, क्योंकि फिजिकल क्लासरूम्स में आप इतना अच्छा, बिकॉज आप सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड है, ठीक है, बच्चों से सिर्फ क्लासरूम में यू आर इंटरैक्टिंग। यहाँ पे बियॉन्ड यू आर इंटरैक्टिंग इन द क्लासरूम एंड बिकॉज ऑफ द फोन यू कैन इंटरैक्ट विद देम। तो एक वो मुझे लगा कि आप यू हैव अ मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद योर स्टूडेंट्स नाउ। I don't know why this is happening and how, but I think this is very special. Yeah. Very true, ma'am. And actually, this was a very great experience for all of them कि जब हम नया मतलब इस चीज को हमने अडेप्ट किया, एंड जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, so obviously it comes with a new energy and with the new positivity, and depend करता है कि टीचर्स इसको कैसे परसीव करते हैं। will take, as ma'am told कि if we'll perceive it in a very negative sense, so obviously we'll not be able to do the things in a very right manner, but obviously अपनी जगह दोनों चीजें हैं, ऑफलाइन के अपने बेनिफिट्स है, अपने नेगेटिव्स है, पॉजिटिव्स है, right? And with this, online has its own merits and demerits.
तो यहाँ पर बस बात ये है कि एक बैलेंस की जरूरत है। अभी हम देख सकते हैं कि इफ विल बी जस्ट कंटिन्यूइंग विद ऑनलाइन मोर एंड मोर, तो ऑब्वियसली विल नॉट बी हैविंग दैट एक्सपोजर। सो एज मैम टोल्ड, blend is required. Now it's time कि हम थोड़ा अब like the situation is normal, so we should go in the colleges, we should interact, and for some time at least we should have that college environment, and afterwards again it can be online, but yeah, एक balance की बहुत जरूरत होती है, and it can be in a very blended way. Smart classrooms can be introduced as ma'am framed over here. But I want to, Diksha, I want to add one thing कि देखो, हाँ, which I missed is कि obviously physical classes is required because online medium में what is happening, आपके इतने सारे competitions है वो you are missing. You're missing the NCC classes, you're missing the NSS, जो extra benefits हैं. So for those students जो कि बहुत दूर रह रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो अटेंड करना. तो somehow again I will say कि blended in the sense कि you have to come to the college sometime, and if you don't want, so you have the smart room, smart classes, so you can attend online. So it should be like that. हाँ, और होना चाहिए, physically be required है. You cannot ignore physical aspect, right? Now at last but not the least, मैम से सबसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि मैम now like हम देखते हैं कि जब एक स्टूडेंट after 12th college में enter करता है, so that's a change for him or her, because college life is totally different from a school life. In school we are entirely limited up with the studies, the board examinations, there is a stress of more and more academics. I would say हम academics की तरफ ज्यादा oriented होते हैं. बट मैम जब हम कॉलेज में आते हैं, सो देर इज अ बिट ऑफ फ्री स्पेस, आई वुड से, एंड स्पेशली अगर हम बात करें लाइक बैचलर्स डिग्री की 3 years प्रोग्राम, सो एंड इवन एवरी डिग्री आई वुड से देर इज अ डिफरेंस. देन वी थिंक एक्चुअली कि वी कैन डू मेनी थिंग्स इन कॉलेज, बट क्या होता है मैम कि कई बार स्टूडेंट्स 3 years यूं ही पास कर देते हैं एंड दे डू नॉट डू एनी मच इन द कॉलेज लाइफ. ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो गाइडेंस ही नहीं मिलती है प्रॉपर कि उन्होंने क्या करना है, जस्ट दे गो विद द फ्लो ऑफ स्टडिंग, एंड कैसे 3 साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता. सो मैम जस्ट आपसे एक लास्ट में यही सवाल रहेगा, क्या क्या चीज एक स्टूडेंट को कॉलेज में करनी चाहिए विद हिज स्टडीज, except studying? What are the other things the student should do in his or her college life to make those 3 years utilized 3 years, I would say? And what are the differences basically between a school life and a college life? What a student observes, क्या जो mistakes है वो student avoid कर सकता है? So ma'am please let us know about this. देखिए, स्कूल में का और कॉलेज का एटमॉस्फेयर, there is a big difference. How? Because school में आप एक तो you wear a uniform, first of all, discipline is very much required, punctuality is very much required. तो वो क्या है ना कि बेटा आपकी वो एज होती है, सो ड्यूरिंग दैट एज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो वो चीजें जो है वो प्रोसेस की जाती है. बट व्हेन यू आर कमिंग टू द कॉलेज, सो आप अपने टीनेज में हो, ठीक है, यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, यू वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू मीट न्यू पीपल. तो वो एस्पेक्ट देखिए, साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिहाइंड दिस. ठीक है, तो जिस तरीके से साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, उस तरीके से आपका एटमॉस्फेयर भी, एजुकेशनल एटमॉस्फेयर भी डिफर करता है. देन यू विल गो फॉर हायर स्टडीज. ठीक है, इस तरीके से होती है चीजें. ठीक है, अब देखिए स्कूल में आप बहुत ही प्रोटेक्टेड होते हैं. ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको थोड़ी फ्रीडम मिलती है कॉलेज में. ठीक है, एंड यहाँ पे आई एम टेलिंग यू, सबके ट्रू real colors you will going to find out, and you will able to know what you are, what are your interests. आपको खुद को बहुत जानने को मिलता है, and आप बहुत चीजें सीखते हैं. ठीक है, और बहुत चीजें आपकी खुद को जान पाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कॉलेज बहुत अलग है और आपको बहुत लिबरल एटमॉस्फेयर एक्सेस देखने को मिलेगा. ठीक है, आपको उस तरीके का डिसिप्लिन, ऑब्वियसली डिसिप्लिन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बट उस तरीके का जो आपको स्कूल में मिलता है उससे और कॉलेज में वो बहुत ही अलग होता है. किस तरीके से, जैसे आप कॉलेज में आएंगे, पहली बात तो यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, सो व्हाटएवर यू वांट टू वेयर यू कैन वेयर. ठीक है, सो बट आई विल से कि फिर भी कई बच्चे नहीं सोचते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि प्लीज थोड़ा सा, यू आर इन अ कॉलेज एटमॉस्फेयर, आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सो इफ यू कैन ड्रेस अप एप्रोप्रिएटली इट विल वर्क. ठीक है, आई विल नॉट से कि आई एम नॉट स्टॉपिंग यू
टू वियर एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा फॉर्मल एटमॉस्फेयर में अगर आप उस तरीके के कपड़े पहनेंगे तो इट विल बी ग्रेट। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आपको कोई बताएगा नहीं। जैसे कॉलेज स्कूल में क्या होता है, आपकी क्लास है, सेम स्टूडेंट है, पीरियड होते हैं, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ पे एक क्लास आपकी रूम नंबर 1 में लग रही है, दूसरी क्लास आपकी रूम नंबर 50 में लग रही है, तो आपको भाग के जाना पड़ेगा। सो आपको पंक्चुअल अपने अकॉर्डिंगली रहना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल SD में हमारी 1 आवर की क्लास होती है, लाइक 8 to 9, 8 o'clock शुरू हो जाती है क्लासेस मॉर्निंग में, सो 8 to 9 है, फिर 9 to 10 आपको हार्डली 5 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। 5 मिनट्स में यू हैव टू रन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। सो वो आपको मैनेज करना है, कोई आपको बताने नहीं आएगा कि बेटा आपकी वहां पे क्लास है आप जाइए, नोबडी विल गोइंग टू टेल यू। एंड लेट मी टेल यू, प्रोफेसर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। वो 5 मिनट्स के बाद दे विल नॉट गोइंग टू अलाउ इन योर क्लास, वो नहीं करने वाले। सो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। तो यहाँ पे स्कूल में फिर भी आपको लोग होते हैं बताने के लिए, यहाँ पे यू हैव टू सी एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि यू लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड इसके साथ साथ बिगड़ने के भी बहुत चांसेस होते हैं। सो आपको वो चीज देखनी है कि आपको कैसी कंपनी रखनी है, ठीक है, इट ऑल्सो मैटर्स। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं चलो नहीं लगानी क्लासेस, दूसरा भी बोलता है नहीं लगानी, वंस इन अ व्हाइल चलो ठीक है, इट इज ओके। अब आप रेगुलरली अगर क्लासेस ही नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू सफर, it will going to affect your marks, it will going to affect you in future। तो वो चीजें ध्यान में रखिए। यूनिफॉर्म डेफिनेटली, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, पंक्चुअलिटी, आपको हर एक चीज खुद करनी है। और वन मोर थिंग, देखिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स यू विल गेट इन कॉम्बिनेशन एंड +2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, और उसके बाद ऑनर्स। अपने आप को यहीं तक लिमिटेड मत रखिए। आई विल से कि एडिशनल कोर्सेज भी करिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यू पीपल ऑलरेडी नो 90s में 100% भी बच्चे लेके आ रहे हैं, सो कंपटीशन बहुत टफ है। तो उस केस में आपको यू हैव टू एक्सेल। तो उसमें क्या है कि डोंट जस्ट बी लिमिटेड विद योर सब्जेक्ट और योर सिलेबस, ट्राई टू ऑप्ट फॉर न्यू थिंग्स लाइक वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट फंक्शनल इंग्लिश इज अ वोकेशनल कोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम SD तो आप इग्नू के भी कुछ कोर्सेज, डिप्लोमास जो है वो ऑफर करता है, तो आप कुछ एडिशनल करिए, स्किल सीखिए। स्किल बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं कॉलेजेस में, तो वो आप देखिए कि कौन से हैं, आप उसके प्रोस्पेक्टस को देखिए, उसको स्टडी करिए और देखिए कि आपके जो भी इंटरेस्ट का एरिया है, आप उसमें आप परस्यू कर सकते हैं अपना डिप्लोमा या कोई भी एडिशनल कोर्सेज। तो अपने आप को लिमिटेड मत रखो सिर्फ सिलेबस से, एडिशनल चीजें भी सीखे। प्लस मैं बता दूं, कई लोगों को नहीं पता होता है, एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे भी नहीं पता था, बिकॉज नोबडी वाज देयर टू गाइड मी, क्योंकि उस समय पे एज सच कोई यूट्यूब नहीं होता था, हमें कोई ऐसे बताने वाला नहीं था। सो यू पीपल आर रियली लकी दैट वी आर हैविंग दिस सेशन, एंड आई एम टेलिंग यू ये बहुत बेनिफिट करने वाला है। एंड आई वुड लाइक टू गिव दिस क्रेडिट टू दीक्षांत एक्चुअली, जिसने ये मुहिम उठाया कि इस तरीके का इंटरव्यू ले, एंड ही इज मेकिंग सो मेनी वीडियोस इन ऑर्डर टू गाइड यू पीपल। सो आई विल से यू आर रियली ग्रेटफुल, ठीक है, आप लोग यू आर रियली लकी, यू शुड बी ग्रेटफुल टू हिम, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए NCC एंड NSS कोई बताता नहीं है, ठीक है, NCC NSS में प्लीज कोई एक कोर्स ऑप्ट करिए एंड डू पार्टिसिपेट इन यूथ फेस्टिवल। ये कईयों को पता नहीं है, यूथ फेस्टिवल होता है, एंड इसके सर्टिफिकेट आप जब कभी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे, किसी भी जॉब में, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। यू हैव अ डिफरेंट कॉलम, अलग से कॉलम फॉर NSS, फॉर NCC एंड फॉर यूथ फेस्टिवल। तो डू पार्टिसिपेट, आपको जो भी लग रहा है आप हर जगह पार्टिसिपेट करिए, इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कॉलेजेस में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश का अपना क्लब है, साइकोलॉजी का अपना है, अब तो हमारे कॉलेज में हिस्ट्री का भी अपना क्लब है। सो बहुत सारे कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्लब होते हैं, ज्वाइन दैट, ठीक है, उसके भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो सिर्फ अपने आप को कोर्स में लिमिटेड मत रखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करिए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस, फैशन डिजाइनिंग, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। इवन आवर SD कॉलेज ऑफर्स अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, लॉट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, डिप्लोमास और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। सो ये सब में भी अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। इट विल डेफिनेटली गोइंग टू, एक तो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, आपके फ्रेंड्स और बनेंगे, ठीक है, यू विल गोइंग टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगी, आपका ये मेन डिफरेंस होता है। एंड कॉलेज जो है बहुत यू कैन एंजॉय इन कॉलेज, ठीक है। स्कूल में क्या होता है कि हर वक्त आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, कॉलेज में कोई नहीं कर रहा, तो आप पढ़ाई भी करिए। आई विल से कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहो और फन ना करो,
have fun, go out with your friends, ठीक है? हर एक चीज को try to balance, try to create a balance कि study पे भी focus रखना है, ठीक है? Friends के साथ भी enjoy करना है, you have to participate in other activities. तो अब अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो कॉलेज लाइफ का आप अपना बेस्ट जो है वो उसका निकाल पाएंगे. यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस द बेस्ट. सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी, आई विल टेल यू. बहुत मजा आता है कॉलेज में, ठीक है? आई एम रियली सॉरी कि आप लोग फिजिकल क्लासरूम में नहीं है, बट होपफुली जल्दी से ये कोविड खत्म हो जाए एंड हम लोग फिजिकल क्लासरूम में आए एंड सब एक दूसरे से मिले. तो यू विल, तो कॉलेज से बेस्ट टाइम आई विल से कि इससे अच्छा टाइम कोई और नहीं होता. तो आप लर्न भी बहुत चीजें करते हैं, आप एंजॉय भी करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. Very truly said, ma'am. And really, students are craving, I would say. They are waiting कि कब colleges खुले and we rush into the colleges. हम लोग अपना packing करें घर से and we should go in the colleges. We should explore. We should enjoy. And obviously, ma'am, जो हमारे friends बने हैं, like we are talking on phones basically with them. तो हम physically meet करें on the cafeteria and everything we can explore. तो days we are just waiting कि कब जैसे ये दिन आए and this COVID pandemic should eradicate as soon as possible from this world. We are complete with this interview. I want to again thank you, a great thank you I would say to Dr. Snehlata ma'am for coming and giving her valuable time to us. And obviously teachers, they have a very busy schedule. Obviously they are messed up with the housework, they are messed up with the college work and many other works, but still ma'am is always ready to help students, to guide students and to motivate students. आप सभी को मैम ने ऑलरेडी बता दिया कि मैम का एक बहुत ही अच्छा चैनल है विद क्वालिटी कंटेंट आई वुड से. द नेम इज स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस. लिंक आई विल बी मेंशनिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हिस्ट्री से रिलेटेड तो आपको टेंशन करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैम इज teaching in a very fantastic way over there. Information ma'am gives. Ma'am has started daily series in which ma'am tells about every day कि हर दिन क्या होता है. That's a short series. तो आपको हर दिन पता चल जाएगा कि आज के दिन क्या है. Just you have to give 1 minute and information is with you. A very reliable, authentic and a trustworthy information from ma'am's channel. तो आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अगर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, अच्छे रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए. मैम हैज टॉट द फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर ऑन हर चैनल. लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सिलेबस कवर्ड है. तो हिस्ट्री में टेंशन की बात नहीं है. एंड मोर लेक्चर्स मैम will be uploading. Just make sure you visit the channel, you watch the lectures, you share them and you subscribe also, because I want ki ma'am ke efforts, we should praise by like subscribing and sharing. That we can do from our side. So this was all in this session and thank you again everyone for watching also. तो लास्ट में just इतना बोलूंगा कि प्लीज शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस सेशन. जो भी एडमिशन लेंगे अभी कॉलेजेस में, अपकमिंग एस्पिरेंट्स जो 12th में पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं ताकि वो भी एक हम बोल सकते हैं उनको भी थोड़ी गाइडेंस मिल जाए एंड वो भी अपना जो ड्रीम कॉलेज है या चंडीगढ़ में आना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए तैयार हो जाए एंड दे कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन एंड स्मॉल क्रक्स ऑफ द कॉलेज लाइफ एंड द इंस्ट्रक्शंस. So this was all. Thank you so much. Keep learning, keep growing and stay safe. Thank you again.